میں آپ کو 2 ٹوک جواب دے دوں, نہ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ ہی ڈھیل ملے گی. ہم نے یہ سعد حریری سے بھی بولا, پہلا NRO تو پاکستان کا آپ نے کروایا تھا, تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے کہا میں آئندہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کروں گا. ڈیل ہوگی نہ کوئی ڈھیل. اب تو سعد حریری نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ آئندہ کوئی NRO نہیں کرائیں گے. وزیر خزانہ اسد عمر بھی کھل کر بول پڑے. مزید کہا کہ IMF سے معاہدے کے بہت قریب آ چکے, امید ہے یہ آخری معاہدہ ہوگا. بنیادی مسائل حل ہونے پر بھارت سے تجارت میں بہتری ہوگی. آسان ٹیکس سسٹم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. چیمبر آف کامرس پشاور میں خطاب. حکومتی پالیسی درست اور معیشت کی گاڑی بالکل ٹھیک چل رہی ہے. برآمدات میں 4% اضافہ اور درآمدات میں $2 ارب کی بچت ہوئی. مشیر تجارت رزاق داؤد اور سیکرٹری تجارت یونس ڈھاگا کی پریس کانفرنس. بولے روپے کی قدر میں مزید کمی نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا IMF اور دیگر مالیاتی اداروں سے قرض کی تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا مطالبہ. نیئر بخاری کہتے ہیں حکمران قرضوں کی شرائط ایوان میں پیش کریں. نفیسہ شاہ بولیں غریب عوام پر مہنگائی کے بم گرا کر IMF کی شرائط پر عمل کیا گیا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نااہل حکومت IMF سے ڈیل پہلے ہی چور دروازے سے فائنل کر چکی ہے. سپریم کورٹ میں اصغر خان عمل درآمد کیس کی سماعت. وزارت دفاع کو ملوث افراد کے خلاف کارروائی 4 ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم. بانی MQM کو بھی پیسے ملے تھے, ان کا نام سامنے کیوں نہیں آیا؟ جسٹس گلزار احمد کا استفسار. برطانوی حکومت کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کے لیے بات چیت جاری ہے, جلد اہم پیش رفت متوقع ہے. اٹارنی جنرل کا عدالت میں جواب. شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی کی درخواست موجودہ بینچ ہی سنے گا. لاہور ہائی کورٹ نے کیس منتقلی کے لیے نیب کی درخواست مسترد کر دی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس کیے کہ نیب پر پہلے بڑے الزامات لگ رہے ہیں. کیا اب نیب اپنی مرضی کے بینچ بنوائے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست واپس لینے کے معاملے پر نوٹس جاری کر دیا. عدالت کا کل ہی نواز شریف کی درخواست پر سماعت کا فیصلہ. قانونی نکات پر عدالت کو مطمئن کریں. نواز شریف کے وکیل کو عدالت کی ہدایت, نیب سے بھی جواب طلب. حمزہ شہباز نے بیرون ملک قیام کی مدت مزید 15 روز بڑھانے کی استدعا کر دی. نومولود بیٹی کی طبیعت خراب ہے, برطانیہ میں قیام کی مدت میں توسیع کی جائے. حمزہ شہباز کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی. سابق وفاقی وزیر کامران مائیکل کی کراچی منتقلی. نیب ٹیم لاہور ایئرپورٹ سے لے کر شہر قائد پہنچ گئی. کامران مائیکل کو بغیر ہتھ کڑی لایا گیا. لیگی رہنما کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال میں زیر حراست ہے. احتساب عدالت نے کامران مائیکل کا 5 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کیا تھا. بابر اعوان مقدمے سے بری ہوں گے یا نہیں؟ نندی پور ریفرنس پر فیصلہ محفوظ. اسلام آباد کی احتساب عدالت فیصلہ 20 فروری کو سنائے گی. بابر اعوان نے دلائل میں کہا کہ کوئی ثبوت نہیں کہ ان کی وجہ سے نندی پور منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا. ایبٹ آباد میں برف باری سے متاثرہ سڑکیں تاحال بند. مری روڈ سے برف ہٹانے کا کام جاری. نتھیا گلی بکوٹ روڈ اور ٹھنڈیانی روڈ پر کام شروع نہ ہو سکا. ادھر ہنزا دیامر کے بالائی مقامات پر برف باری کا نیا سلسلہ شروع.
دنیا بھر میں موسم کے مختلف رنگ، کہیں جما دینے والی برفباری تو کہیں موسلادھار بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ امریکہ میں شدید برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا، چین میں بھی برفباری کا غلبہ جاری۔ آسٹریلیا میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ ادھر برطانیہ میں ایرک نامی طوفان کے بعد شدید بارشوں اور یخ بستہ ہواؤں کا راج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف یاسر۔ اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں یاسر رشید۔ آئی ایم ایف جو کبھی پی ٹی آئی حکومت کو چڑیل لگا کرتی تھی، آج کل مس ورلڈ دکھائی دینے لگی ہے۔ اپوزیشن کے حکومت پر تنقیدی وار۔ اس بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد احمد رانا۔ آپ کے ساتھ میں ہوں مدیحہ مسعود۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں۔ کوئی ڈیل ہوگی نہ ہی ڈھیل۔ وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں ڈیل تو دور کی بات، ڈھیل بھی بھول جائیے۔ ہم نے تو سعد حریری پر بھی واضح کر دیا ہے کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا۔ ہم نے سعد حریری کو یاد کرایا کہ پاکستان کا پہلا این آر او آپ نے کرایا تھا، جس پر حریری نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ آئندہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ پشاور چیمبر آف کامرس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، امید ہے یہ آخری معاہدہ ہوگا، بنیادی مسائل حل ہونے پر بھارت سے تجارت میں بہتری آئے گی۔ میں آپ کو دو ٹوک جواب دے دوں، نہ کوئی ڈیل ہوگی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ڈھیل ملے گی۔ ڈیل تو دور کی بات ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہ سعد حریری سے بھی بولا کہ یہ آپ جو ہے ان کو یاد دلایا ہم نے کہ پہلا این آر او تو پاکستان کا آپ نے کروایا تھا، تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا میں آئندہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کل کوئی معاہدہ کرنے کے لیے میٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ اس میٹنگ کے اندر یہ ضرور ہوا کہ جو بنیادی جو نکات ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے اوپر ایک اتفاق رائے بالکل وہاں پر بنا۔ اور جو پاکستان کی معیشت کی کمزوریاں ہیں، یہاں کا ٹیکس کا نظام کمزور ہے، ہم اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں کر رہے ہیں جتنا ملک کو چلانے کے لیے ضرورت ہے، یہ ساری باتوں کے اوپر اتفاق ہوا۔ اس بات پہ اتفاق ہوا، آئی ایم ایف نے کہا کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور پروگرام پاکستان کو دینا چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اس پروگرام کو سائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کوئی نیگوسیشن سیشن نہیں تھا جس کے اندر کوئی شرح سود وغیرہ ایسی چیز کوئی نہیں اس کے اندر ڈسکس ہوئی۔ ایک اصولی طور پر ٹاپ لیڈرشپ پاکستان کی بھی اور آئی ایم ایف کی بھی، ان میں اتفاق رائے ضرور پایا گیا۔ پی ٹی آئی والوں کو آئی ایم ایف پہلے چڑیل لگتی تھی، اب مس ورلڈ دکھائی دیتی ہے۔ سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں حکومتی کشکول در در گھوم رہا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا، پاکستان کا وزیر اعظم خود آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا، اب آئی ایم ایف کی سب شرائط مانی جائیں گی۔ صوبائی وزیر نے سندھ کو گیس نہ ملنے پر شکوہ بھی کیا ہے۔ خان صاحب نے پوری جو اپنا رہا سلسلہ کنٹینر والا یا الیکشن کمپین جس میں بھی انہوں نے بات کی، عوام کو ماموں بنایا، وہ اب سب اس سے یو ٹرن لیتے جا رہے ہیں۔ خودکشی کی بات کی تھی، کشکول نہیں اٹھائیں گے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اب ان کا کشکول در در جا رہا ہے۔ اور پھر آئی ایم ایف جو ان کو چڑیل لگتی تھی، اب ان کو مس ورلڈ لگنے لگ گئی ہے۔ وہ خود پرائم منسٹر فرسٹ ٹائم خود پہنچ گئے۔ بلکہ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جتنی مہنگائی ہوئی ہے یا ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے، یہ سارا انہوں نے خود کیا ہے۔ اگر پرائم منسٹر ملک کا خود یہ بیان دے دے کہ جی یہ تو روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے، ڈالر مہنگا ہوا ہے تو مہنگائی تو بڑھے گی، تو پھر ظاہر ہے مہنگائی کتنی ایک دم اوپر چلی جاتی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو نا تجربہ کاری کی، صرف وہ جو ایک انہوں نے رکھ لیا تھا اپنا سہانے سپنے دکھانا، دیگر چیزیں اب وہ سب واضح ہو گئیں۔ اور اب بات حکومت کی بڑی کامیابی کی۔ پاکستان کی برآمدات 4% بڑھ گئی ہیں، درآمدات میں $2 بلین کی کمی ہوئی ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے دعویٰ کیا کہ روپے کی قدر میں مزید کمی نہیں ہوگی۔ اسلام آباد سے دیکھیں گے راحیل حسن کی رپورٹ۔
मुशीर तिजारत अब्दुल-रज़ाक दाऊद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रवा माली साल के 7 माह में $2 बिलियन की इम्पोर्ट में कमी हुई, जबकि एक्सपोर्ट 4% बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में मजीद कमी नहीं होगी। IMF से बिजली गैस के रेट बढ़ाने की कोई बात नहीं हुई। पिछले साल के मुकाबले में इस साल 2 बिलियन का इम्पोर्ट्स कम हो गया है। ये जो हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जो ड्राइव है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा ने बताया कि गुज़िश्ता 7 माह में तिजारती तवाज़न में 31% बचत हुई। अफ्रीका में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 10 ममालिक में ट्रेड ऑफिस खोल रहे हैं। 31.74% बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी जो तिजारती खसारा कम हुआ है। लुक अफ्रीका प्लान के तहत हम 10 जो उसके बड़े ममालिक हैं GDP वाइज, वहाँ पे हम अपने ट्रेड ऑफिस खोल रहे हैं और उनके जो जितने भी ट्रेड ब्लॉक्स हैं उनके साथ हम FTA की नेगोशिएशन भी शुरू कर रहे हैं। मुशीर तिजारत का कहना था कि जुलाई से जनवरी तक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सीमेंट की बरामदात में $180 मिलियन का इजाफा हुआ। फूड आइटम्स और टेक्सटाइल की बरामदात भी बढ़ी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त वापस लेने से मुतल्लिक केस में नैब से कल जवाब तलब कर लिया। तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त पर भी कल समाअत होगी। इस्लामाबाद से देखते हैं फयाज महमूद की तैयार करदा ये रिपोर्ट। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। कल दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। नैब को भी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। अदालत ने करार दिया कि मंगल को ही मुल्जिम की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। ख्वाजा हारिस को हिदायत की गई कि कानूनी निकात पर अदालत को मुतमईन करें। और दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग कामरान माइकल को लाहौर से कराची मुंतकिल कर दिया गया। नैब हुकाम साबिक वजीर को कल एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन चांडियो। साबिक वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग कामरान माइकल की गिरफ्तारी का मामला। नैब टीम ने साबिक वफाकी वजीर को लाहौर से कराची मुंतकिल कर दिया। एयरपोर्ट पर नैब इंटेलिजेंस के 8 एहलकार और 3 गाड़ियां मौजूद थीं। कामरान माइकल को एयरपोर्ट से नैब कराची हेड ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर पर KPT कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 3 कमर्शियल प्लॉट लेने का इल्जाम है। नैब के मुताबिक प्लॉट लेने से कौमी खजाने को 1 अरब 5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। नैब के मुताबिक कामरान माइकल ने प्लॉट लेकर ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया और बतौर वफाकी वजीर गैर कानूनी अहकाम भी जारी किए, जबकि हाउसिंग स्कीम से रिश्वत के तौर पर 16 प्लॉट मनपसंद अफराद के लिए भी अलॉट करवाए गए। नैब ने कामरान माइकल को 8 फरवरी को लाहौर से गिरफ्तार किया था। एहसन चांडियो, 92 न्यूज, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान अमल दरामद केस में वजारत दिफा से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। 4 हफ्तों में मुतलका इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी पैसे मिले, लेकिन FIA की रिपोर्ट में नाम शामिल नहीं है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखें। असगर खान केस में FIA की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। रिमार्क्स ये कि FIA ने तो हाथ खड़े कर दिए। अपनी रिपोर्ट में बताया कि बैंकों में 28 साल से ज्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं, कोई सबूत नहीं मिल रहा। अगर ऐसा है तो बैंकों के सरबराहों को बुला लेते हैं। दौरान समाअत बानी मुत्तहिदा का भी जिक्र। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि पैसे तो MQM और उसके बानी को भी मिले थे। केस में उनका नाम आया न FIA रिपोर्ट में। अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि FIA रिपोर्ट में मुत्तहिदा बानी का नाम था, वो अभी पाकिस्तान में नहीं। बरतानवी हुकूमत से मुत्तहिदा बानी और दीगर मुल्जिमान की हवालगी के लिए बातचीत जारी, जल्द अहम पेशरफ्त होगी। अदालत ने वजारत दिफा को मुतलका इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। करार दिया कि FIA रिपोर्ट का जायजा वजारत दिफा के जवाब के साथ लिया जाएगा। देखेंगे अदालती हुक्म पर अमल हुआ या नहीं। मजीद भी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज UK। हमारे साथ रहिए।
वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन रहनुमा के नाम चिट्ठी टीरेज़ा मे ने जेरेमी कॉर्बन की ब्रेक्सिट मुआहदे पर तरामीम को खुशाइन करार दे दिया। कहा दोनों जमातों को आयरिश बॉर्डर के मसले पर मुज़ाकरात करना होंगे। इस खत में टीरेज़ा मे का मज़ीद क्या कहना था, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके वजीर आजम टीरेज़ा मे की जमात और अपोजिशन लेबर पार्टी ने बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदगी पर इतफाक कर लिया, मगर जेरेमी कॉर्बन की तरामीम को मद्देनजर रखते हुए ब्रेक्जिट मुआहदे में तब्दीलियां करना टीरेज़ा मे के लिए मुश्किल हो गया। वजीर आजम टीरेज़ा मे ने अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन को खत लिखा, जिसमें टीरेज़ा मे ने अपोजिशन रहनुमा की जानिब से पेश करदा तरामीम को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि अपोजिशन जमात किसी इलेक्शन और दूसरे रेफरेंडम के हक में नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक में है। टीरेज़ा मे ने कहा कि वो लेबर पार्टी के साथ मिलकर आयरिश बैकस्टॉप बॉर्डर के मसले को हल करना चाहती हैं। टीरेज़ा मे ने खत में कहा कि बरतानिया मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन से अलहदगी अख्तियार करेगा, मगर अब जरूरत है इस मुआहदे की जो आयरलैंड की आवाम के साथ किए गए हैं। हमारे वादों का एहतराम करे जिसको पार्लियामेंट की हमायत हासिल हो और जिसकी बिना पर यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात हो सके। दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमा का कहना था कि अगर टीरेज़ा मे ब्रेक्जिट के इस मुआहदे पर पार्लियामेंट से हमायत हासिल करने में नाकाम रही तो इस सूरत में आम इंतखाबात होने चाहिए। ब्रेक्जिट तरामीम पर वोटिंग गुज़िश्ता माह के आखिर में हुई थी। रहनुमा लेबर पार्टी एमपी सीमा मल्होत्रा कहती हैं नो डील ब्रेक्जिट से बचने के लिए पार्लियामेंट आर्टिकल 50 के अल्तवा के खिलाफ बिल पास करेगी। लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ लंदन में लेबर पार्टी की एमपी सीमा मल्होत्रा साहिबा मौजूद हैं, जो कि सारी कार्रवाई ब्रेक्जिट की जो है ज़ाहिर है ये पार्लियामेंट के अंदर होती है, सारी कार्रवाई को ये देख भी रही हैं और क्लोजली मॉनिटर भी कर रही हैं और लेबर पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू इनके पास है। इनको सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि ब्रेक्जिट की इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल पार्लियामेंट के अंदर क्या है। जी सीमा। Well, this week the Prime Minister has gone to Brussels. She is hoping to make some changes to her deal. There is no sign yet that they will agree to any changes because last time she was there she shook on that deal and they believe that she should stay with her word. They are saying they may look at negotiating more on how the future will look like, and in that I would support them doing that because I believe that's very important. Britain must know where it's going as well as what it's leaving. In addition, the leader of the Labour Party, Jeremy Corbyn, has written to the Prime Minister. He has said that any deal must keep our environmental standards, our consumer standards, our employment standards, and make sure that we don't affect negatively our trade with other European countries. We should also have a customs union. These are very important matters. We do not want business to be affected. We do not want families to become poorer. These are the matters being debated in Parliament this week. 14 फरवरी को क्या होने जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं कि उस दिन जो है वो एक फाइनल ड्राफ्ट पेश किया जाएगा एमपीज़ के सामने, क्या होने जा रहा है? We are waiting for the Prime Minister to come back from the European Union. We don't know yet whether she will bring back a deal. Otherwise, she will be making a statement in Parliament and they will be tabling a motion for Parliament to debate. We expect there to be some votes on Thursday. But what we are now expecting is that the Prime Minister will delay any big votes for another 2 weeks because she has not had the agreement that she has told the British people she will get. अगर कुछ नहीं होता तो 29 मार्च जो आ रही है बिल्कुल राउंड द कॉर्नर मैं कहूँगा, तो 29 मार्च को क्या होगा अगर सूरत हाल ऐसी रही तो? If there are more delays, Parliament, I believe, will call for us to extend the Article 50 notice. This means that they will push back. We are calling for this to push back March 29th. I was in the European Union. How long? Up to 3 months at the moment. I was in the European Union last week with our select committee. I spoke directly to the European Commission, European Parliament. Because the European Parliament elections are coming, that means that the Parliament will be a new Parliament from July the 2nd. If we leave and we don't have European elections, we cannot sit in that new Parliament. That's why the end of June would be the deadline. Anything further than that, we would have to have European elections. And that's why this is now a matter of big concern for us and the European Union. Thank you very much.
जिस तरह पार्लियामेंट दूसरे रेफरेंडम की हामी नहीं, ऐसे ही वो नो डील ब्रेक्सिट को भी सपोर्ट नहीं करेगी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की स्काई न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कोई भी जिम्मेदार शख्स बगैर किसी मुआहदे के यूरोप से अलहदगी की तजवीज़ नहीं देगा। लंदन के इलाके हंसलो में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के सालाना चैरिटी डिनर की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग कब्रिस्तान और दीगर फलाही कामों के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए। इसी पर हम देखेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। हौंसलों में पाकिस्तानियों और मुसलमानों की खिदमत में पेश पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन की सालाना तकरीब मुकामी हॉल में हुई, जिसमें मुकामी काउंसलर्स, कारोबारी हजरात और कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हौंसलों के सेक्रेटरी जनरल एहसान शाहिद, MP सीमा मल्होत्रा, मेयर समिया चौधरी, MP रुथ कैडबरी और दीगर ने खिताब किया। उनका कहना था कि मसाजिद की देखभाल से लेकर फ्री ओपन किचन और अलग मुस्लिम कब्रिस्तान तक के लिए PWA की कोशिशें काबिले सताइश हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन ने तंजीम के फलाही कामों की तारीफ की और शानदार फंड रेजिंग इवेंट पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद भी पेश की। वेरी इम्पोर्टेंट है किसी भी कम्युनिटी के लिए। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रही है, वो हर एक कम्युनिटी के लिए काम कर रही है। बिकॉज जिधर पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हॉन्सलो बेस्ड है, जिना सेंटर, वो हैनवर्थ में, मैं वहाँ से वोट काउंसलर हूँ और मुझे ईयर्स हो गए हैं देखते कि हाउ हार्ड दे वर्किंग, एंड आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट जो हम अपनी कम्युनिटीज़ को एक कम्युनिटी चैनल से चलते हैं और सारी कम्युनिटीज़ की सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये पिछले 53 ईयर से लंदन बार ऑफ हंसलो में पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पर और तमाम मुसलमानों की मदद कर रही है। इनका जो ख़ास काम है इस बारों के अंदर, आज से 40 साल पहले जब यहाँ पर कोई फौत हो जाता था, जब किसी के पास कोई उनका पाकिस्तान से कोई ख़त आता था, जब यहाँ पर उनको होम ऑफिस का या पुलिस का कोई मामला होता था, तो एक ही जगह होती थी, लोग उनके पास उनके दफ्तर में जाया करते थे और वो सारे मामला के लिए उनकी वो रहनुमाई करते थे। हंसलो में 1966 से काम कर रही है और ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कम्युनिटी एसोसिएशंस बाहर के मुल्कों में काम करें। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आवाम के मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए ये एसोसिएशंस काम करती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो कब्रिस्तान का मसला था वो हंसलो के मुसलमानों के लिए हल हो गया है। पाकिस्तान एसोसिएशन ने काफ़ी काम किया हंसलो में, बहुत पुरानी एसोसिएशन है, 1966 से, माशाल्लाह कम्युनिटी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। This is very wonderful evening. The evening for the Pakistan Welfare Association. Also, I'm here with Councillor Shahida Mehban, who's been involved for many years with the association. We've seen the work in the community, working with the council on how to make life better, deal with issues affecting the Pakistani community, wider Muslim community. यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है वो उसका बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलता है। यहाँ पे जो मौसीकी होती है और ये सब हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, वो उनको लर्न करने का मौका मिलता है और एक दूसरे से सोशल गेट टुगेदर में एक दूसरे से आपका नेटवर्किंग भी बढ़ता है। ये वाहद ऑर्गेनाइजेशन है जो 60 ईयर से यहाँ पे काम कर रही है। ये तमाम को इकट्ठी करती है और बहुत सारे जो कम्युनिटी के इशूज़ हैं उनको उजागर करते हैं और ताकि ये जो इनके मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में जो यूके में जो काम किया जा रहा है PWA के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। तकरीब में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था, जिसे शुरका ने खूब सराहा। तकरीब के आखिर में शुरका की तवाज़े पुरतकल्लुफ़ खाने से की गई। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन हंसलो 53 साल से पाकिस्तानियों के साथ साथ दीगर कम्युनिटियों की भी खिदमत कर रही है। लोगों का कहना था कि ऐसी एसोसिएशन कम्युनिटी की फलाह के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन, हंसलो। इस्लामिक सेंटर एल्फर्ड में हुजाज किराम और उम्रा ज़ायरीन की तरबियत के लिए एक सेमिनार का एहतमाम हुआ, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब ने की। तफसीलात ईस्ट लंदन से सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखते हैं। अब मुझको बुलाएगा, मैं कावे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं कावे को देखूंगा। हुज्जाज किराम और उम्रा ज़ायरीन की तरबियत के लिए लगाए गए ट्रेनिंग सेशन में मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि हज के लिए लाजिम है कि आपको इसके ज़रूरी मसाइल से मुकम्मल आगाही हो।
बदकिस्मती से कुछ इदारे आगाही की बजाय सबज बाग दिखाने का काम करते हैं। इस मौका पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद इस्माइल और दीगर का कहना था कि दियारे गैर में हज और उम्रा के हवाले से इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद होना इंतहाई खुश आइन है। जो उम्मे आयशा ने ये प्रोग्राम जो हमारे मौलाना ने रखा है, इसका मेन मकसद ये है कि लोग जब इतना बड़ी इबादत के लिए जा रहे हैं तो उसको सीख कर जाएं और समझ के जाएं और इसके लिए पूरी पहले ट्रेनिंग लें, तो ये इंसानों के लिए बेहतर होगा ताकि जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें पूरी कामयाबी मिले। अल्लाह इसकी हमें समझ दे और तौफीक दे। आज बड़ी खुशी हो रही है, मैं देख रहा हूँ हज और उम्रा की जो शहादत ले रहे हैं वहाँ पर उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह, उनके लिए वहाँ पर कैसे वहाँ परफॉर्म करना हज और उम्रा, ये अल्लामा इस्माइल साहब काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं इस बेसिस पर। सो इट्स वंडरफुल टू नो जब भी कोई जाए जहाँ पर मेक श्योर वो जो रेप्यूटेबल कंपनी के साथ जाए वहाँ पर, सो दैट वो हज और उम्रे के परफॉर्मेंस वो अच्छी तरीके से करें। अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा को मुकम्मल अहकाम के साथ अदा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मे आयशा ऑर्गेनाइजेशन जो है ओवरसीज़ के लिए बहुत काम कर रही है और उन्होंने ये एक स्टेप उठाया है कि बहुत सारे लोग बरतानिया यूरोप से जाते हैं और काफ़ी उनको मुश्किलात मिलती हैं। बाज़ दफ़ा एक तो ये है कि मसाइल का इल्म नहीं होता और वहाँ भी कुछ ऐसे लोगों के साथ यहाँ से रब्ता होता है कि वो फैसिलिटीज़ जो लोग कहते हैं उनको वो नहीं मिलती वहाँ, तो फिर वो बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं। तो हमने कहा कि हम हुज्जाज कराम और उम्रा करने वालों के लिए गाइडेंस दें, उनको तरबियत दें, उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो किसी सही फर्म के साथ, सही कंपनी के साथ जो है वो जाएं ताकि इस तरह की दुश्वारियां पेश ना हों। हज और उम्रे के मुताबिक ताकि हम जानना चाहें कैसा हज और उम्रा होता है, क्या तैयारी करनी पड़ती है, तो जो कॉमन सवाल है हमें जवाब नहीं मिलते, यहाँ आके हम जवाब ले सकते हैं। और जो मौलाना साहब है इनसे सवाल करके इनके सवालों का जवाब भी दिया जाता है कि हम कैसे जा सकते हैं, ग्रुप में जा सकते हैं या कि अकेले जा सकते हैं फैमिली के साथ। तो ये टॉक जो है बहुत फ़ायदेमंद है। ट्रेनिंग के दौरान ज़रूरी मसाइल के साथ साथ एहराम बांधने का तरीका और एहराम की शराइत के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी गई। मजीद भी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान कॉन्सुलेट बर्मिंघम का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए आसान इक़दाम। हर माह के दूसरे हफ्ते नादरा सर्विस का आगाज़ कर दिया। छुट्टी वाले दिन सहूलत मिलने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी खुश है और अहमद इस्माइल कहते हैं कि ये सहूलत देकर कॉन्सुलेट और कम्युनिटी में मौजूद खला दूर किया गया है। मज़ीद तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कॉन्सुलेट बर्मिंघम ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हर माह के दूसरे हफ्ते कॉन्सुलेट को खुला रखने का बाकायदा आगाज़ कर दिया। हफ्ते के दिन ये सहूलत देने का मकसद उन पाकिस्तानियों की मुआवनत करना है जो नौकरी की वजह से बाकी दिनों में कॉन्सुलेट नहीं आ सकते। कॉन्सुलेट में आने वाले ख़वातीन और हज़रात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की सर्विसेज से बहुत खुश हैं। उन्होंने कौंसल खाने के अमले की पेशावराना खिदमात को भी सराहा। आई थिंक पाकिस्तान ये फर्स्ट एम्बेसी है जो सैटरडे ओपन है और बहुत हमें बहुत सहूलत मिली है इससे। बड़ी अच्छी सर्विस इन्होंने दी है, पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी सर्विस दी है, लेकिन इसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमें इन्होंने डील किया है और कोई ख़ास ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में आए हैं या किसी और जगह पे गए हैं। हम पाकिस्तान कॉन्सुलेट आए, हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत फ्रेंडली माहौल और बहुत क्विक सर्विस है। सबने बहुत अच्छी तरह हमें वेलकम किया और हमारा काम बहुत जल्दी हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि वीकेंड पे हमारा काम हो गया और हम यहाँ आकर बहुत खुश हैं। जो स्केयर था पहले कि ना, डर लगता था कि कोई बंदा जानने वाला हो तो काम होता है, वो ड्रामे नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान वाले। मैं खुद भी पाकिस्तान से आया हूँ, तो लास्ट वीक अपॉइंटमेंट ली थी वीक डेज़ की, फिर वाइफ ने बताया कि वीकेंड पे होने लगी है सैटरडे, तो पूरा दिन बच गया मेरा ऑफिस का, हर चीज़ का। और अमेजिंग, और सब आके पूछ रहे हैं
Unbelievable. Thank you very much again. जिस तरह बाकी यूके में 5 डेज़ काम होता है, हम छठे दिन सैटरडे के दिन भी काम करते हैं और लोगों को कौंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये कौंसलेट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि छुट्टी वाले दिन भी लोगों को हम सहूलत फराहम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये जो सर्विसेज हैं ये इंग्लैंड के दूसरे शहरों में जिस तरह लंदन है, मैनचेस्टर है, ब्रेडफोर्ड है, ग्लासगो है, ये वहाँ पे भी इसका दायरा कार वसी किया जाएगा। हफ्ते वाले दिन बर्मिंघम कौंसलेट की सर्विसेज को ओपन रखने का बुनियादी मकसद ये है कि वो लोग जो किसी वजह से वर्किंग डेज में नहीं आ सकते वो हफ्ते वाले दिन आके अपना काम करवा सकें। दूसरी जानिब कौंसल जनरल अहमद इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी कोशिश है पाकिस्तान कौंसलेट और अवाम के दरमियान मौजूद खला को दूर किया जा सके। हर दूसरा हफ्ता महीने का जो होता है उसमें हम लोग यहाँ पे सर्जरी अपने कौंसलेट में ही करते हैं और जितने लोगों ने नादरा कार्ड्स बनवाने होते हैं, अटेस्टेशंस करवानी होती हैं, वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं। उनका कहना था कि हर माह के पहले, तीसरे और चौथे हफ्ते में मिडलैंड्स के मुख्तलिफ शहरों में नादरा सर्जरी लगाई जाएगी ताकि लोगों को उनकी दहलीज पर खिदमात फराहम की जा सकें। पहला, तीसरा और चौथा जो सैटरडे होता है हफ्ता महीने का, उसमें हम लोग मुख्तलिफ़ शहरों में जैसे वेस्ट मिडलैंड्स के मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं और वहाँ पे सर्जरीज़ करते हैं जिसके अंदर ये हम लोग नादरा कार्ड्स बनाते हैं, अटेस्टेशंस करते हैं और वीज़ा फॉर्म्स एक्सेप्ट करते हैं। सबमिशन सिर्फ वीज़ाज़ उस दिन वहाँ पे वो देते नहीं, लेकिन हम सबमिट करके यहाँ पे फिर बाद में प्रोसेस करके उनको इशू करते हैं। तो ये अभी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमने शुरू की हैं रिसेंटली। अहमद इस्माइल ने बताया कि इमरजेंसी की सूरत में हमने 24 घंटे फ़ोन की सहूलत फराहम की है ताकि हंगामी सूरत में अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद की जा सके। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में अयाम फातिमा और शहादत हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अज़ादारी की मजलिस का इनेकाद किया गया जिसमें मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। साहबजादी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के मौके पर मजलिस अज़ा बरपा हुई। मजलिस में अक़ीदतमंदों और अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई और शहज़ादी कौनैन को पुरसा दिया। इस मौका पर मौलाना अरशद अमीर आब्दी ने ख़िताब करते हुए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना शहादत का जिक्र किया और उनकी हयात तय्यबा पर भी रोशनी डाली। इसलिए अल्लाह ने विलायत को अपने कुरान में डिफाइन किया। पूरी तवज्जो रखना, अपने कुरान में विलायत को डिफाइन किया और ये कहकर अल्लाह ने डिफाइन किया है अल्लाह वली है और वो वली है जो मुर्दों को जिंदगी देता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 20 जमादी सानी बैसत के 5वें साल मक्का मुकरमा में इस दुनिया में तशरीफ़ लाईं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में परवरिश पाई। आप अल्लाह ताला की इंतहाई मुकर्रब हस्तियों में से एक हैं। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा 13 जमादी अव्वल 11 हिजरी कमरी और एक रिवायत के मुताबिक 3 जमादी सानी 11 हिजरी कमरी को शहीद हुई, जिनकी याद में दुनिया भर में मजालिस बर्पा होती हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन में भी चीन के कमरी साल का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया गया। चीन के रवायती ड्रैगन और लाइन डांस ने देखने वालों का दिल मोह लिया। मजीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह बरतानिया की गलियां भी चीन के कमरी साल के मौके पर दुल्हन की मानिंद सज गई। कहीं रवायती लाइन एंड ड्रैगन डांस शो तो कहीं लोगों की परेड ने नए साल के जश्न को शानदार रूप दे दिया। इस मौके पर चीन की सकाफत के हवाले से स्टेज ड्रामे भी पेश किए गए। लंदन की तरह मैनचेस्टर, लिवरपूल, बर्मिंघम और दीगर शहरों में भी कमरी साल के जश्न के रंग भर गए। मजीद भी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हमारे साथ रहिए।
برطانیہ میں ایرک نامی طوفان کے تھم جانے کے بعد شدید بارشوں اور یخبستہ ہواؤں کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مہینے کے اختتام تک سرد ہواؤں اور برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ لندن اور ایڈنبرا میں موسم قدرے بہتر رہے گا۔ موسم کا مزید احوال اس رپورٹ میں دیکھیے۔ برطانیہ میں ہر طرف برف ہی برف۔ طوفان ایرک یوں تو تھم گیا، مگر برطانیہ کے لیے بارشوں کے ساتھ ساتھ برف باری کا نیا سلسلہ چھوڑ گیا، جو کہ اس ماہ کے اختتام تک وقفے سے جاری رہیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کے باعث درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گرنے کا امکان ہے، جبکہ اسکاٹ لینڈ کے بعض علاقوں میں بھی یلو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ مختلف شہروں کی بات کی جائے تو لندن اور ایڈنبرا میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہے گی۔ لندن میں ہلکی ہواؤں اور بادلوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 جبکہ کم سے کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے۔ برمنگھم میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ یخبستہ ہواؤں کے ساتھ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 ڈگری اور کم سے کم 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیڈز میں بھی بادل چھائے رہیں گے، شہر میں بادلوں کے ڈیرے ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے، جبکہ مانچسٹر میں بھی بادلوں کے ڈیرے ہوں گے، جس کے بعد شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ گلاسگو میں بادلوں کا راج ہوگا، جبکہ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 اور کم سے کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کی توقع ہے۔ وادی معلم جبہ میں 4 روزہ سکینگ سنو فیسٹیول کے رنگارنگ مقابلے اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں۔ فیسٹیول میں مختلف مقابلوں میں کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ عبید فضل کی رپورٹ دیکھیے۔ معلم جبہ 3 روزہ سنو فیسٹیول اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ سوات کی برف پوش وادی معلم جبہ میں 4 روزہ سنو فیسٹیول خوشگوار یادیں چھوڑ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ فیسٹیول میں سکینگ کے کھلاڑیوں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ مہمان خصوصی کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود کا کہنا ہے کہ معلم جبہ جیسی جگہ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ پوری دنیا میں گھوما، ہر جگہ دیکھی، لیکن ہمارے ملک سے زیادہ خوبصورت نہ صرف علاقہ بلکہ اس سے زیادہ مہمان نواز اور اچھے لوگ بھی آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ یہاں پر آئیں، دیکھیں، آپ کو سوئٹزرلینڈ، جرمنی، یورپ سے زیادہ اچھے علاقے اور اچھے خوبصورت اور مہمان نواز لوگ ملیں گے۔ 4 روزہ سکینگ گالا کے مقابلوں میں ڈپٹی کمشنر سوات کی ٹیم نے پہلی، سول ایویشن کی ٹیم نے دوسری جبکہ پولیس کی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ فیسٹیول میں کھلاڑیوں نے اپنے فن کے خوب جوہر دکھائے۔ ملک بھر سے آئے سیاحوں نے خوب انجوائے کیا اور بھنگڑے ڈالے۔ بہت زیادہ اچھی ارینجمنٹس ہیں، اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لوگ بہت اچھے ہیں، جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ انجوائے کیا۔ یہاں پر ایڈونچر بھی بہت اچھا ہے، بیوٹیفل ہے اور امیزنگ، یہ بہت ہی اچھا ہے، لوگ یہاں آنے چاہیے۔ بہت زیادہ انجوائے کیا، اسکیئنگ دیکھی، خود بھی ٹرائی کی ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہر کسی کو آنا چاہیے۔ پرسکون اور پرامن ماحول میں فیسٹیول نے وادی کے حسن کو 4 چاند لگا دیے۔ پیرس کے نوائی علاقے مونفرموئی میں سجا رنگ رنگ ملٹی کلچرل فیشن شو۔ ملٹی کلچرل فیشن شو میں دیگر فیشن ڈیزائنرز کے ساتھ پاکستانی فیشن ڈیزائنر آصفہ ہاشمی نے پاکستانی ملبوسات پیش کیے اور خوب داد وصول کی۔ مزید جانیں گے راجہ حبیب کی رپورٹ میں۔ پیرس کے نواحی علاقے مونفرموئی میں سجا رنگا رنگ بین الاقوامی کلچرل فیشن شو، جس میں 30 سے زائد ممالک کے فیشن ڈیزائنرز نے اپنے ملک کے کلچر کے مطابق ملبوسات کی نمائش کی، جبکہ پاکستانی فیشن ڈیزائنر آصفہ ہاشمی نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستانی ملبوسات پیش کیے۔
फैशन डिजाइनर आसफा हाशमी के तैयार करदा पाकिस्तानी मलबूसात पहने मॉडल्स की रैंप पर कैट वॉक ने कल्चरल फैशन शो को 4 चांद लगा दिए। मुख्तलिफ सकाफतों पर मबनी मुख्तलिफ मलबूसात पहनकर जब मॉडल्स ने रैंप पर कैट वॉक की तो मनाजिर देखने के काबिल थे। मल्टी कल्चरल फैशन शो में जहां मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत के रंग देखे गए, वहां पाकिस्तानी सकाफत की झलक ने इवेंट का मजा दुबाला कर दिया। कैमरा टीम के साथ राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK और एक्सेस कीजिए हमारी वेबसाइट 92newsHD.in।